Till the previous lecture, we were studying about linear simple harmonic motion. In this lecture, we will be talking about angular SHM and we will also derive its differential equation. Now, what exactly is angular SHM? तो let us consider a pendulum and इस pendulum का जो bob है इसको हम लोग angular displacement देके release करते हैं and then we'll observe its motion. Alright, so this is the bob of the pendulum. उसको हम लोग थोड़ा angular displacement देके अगर हम लोग उसको release कर देंगे तो देखो ये जो oscillations perform कर रहा है, these oscillations are called as angular SHM. So let us consider कि we have suspended a disc by using some wire and now this disc is initially in the equilibrium position. So if we have to set this disc into oscillations, हम लोग को इसको कुछ angular displacement देना पड़ेगा. So to observe its motion, first let us consider any random point on the disc. So I am considering here a point और मैं उसको बोल देता हूँ O and this is the initial location with respect to the center. Alright, तो अगर इस disc को oscillations करवाना है, so we'll let us say we'll give some angular displacement to this disc in this particular direction. तो उससे क्या होगा, ये point O यहाँ पर नहीं होगा, अभी वो थोड़ा आगे चला गया होगा. Alright, so let us say कि point O यहाँ पर आ गया. तो अब ये जो एंगल कवर किया है अपने पॉइंट ने, लेट अस कॉल दिस पर्टिकुलर एंगल एज थीटा और यही तो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब क्या होगा, जैसे इसको आप एक टॉर्क देके ट्विस्ट कराओगे एंड व्हेन यू रिमूव दैट टॉर्क, ये डिस्क वापस उल्टे डायरेक्शन में रोटेट होना चालू होगा, जैसे हम लोग ने अभी पेंडुलम के साथ देखा, राइट. तो यहाँ पे दिस डिस्क विल स्टार्ट रोटेटिंग अगेन ड्यू टू दिस स्ट्रिंग. Right, this string is elastic in nature. So whenever we are rotating the disc, वो string उसके साथ twist हो गया, right? And once we remove the torque, ये string elastic होने के वजह से it will try to regain its original state. And ये disc अगर rotate हो रहा है वापस original position पे, तो it definitely shows कि वहाँ पर एक torque introduce हो रहा है. And वो जो torque introduce हो रहा है string में, we will call that torque as restoring torque, right? जैसे हम लोग लीनियर एसएचएम में restoring force का बात करते थे, right? यहाँ पे we will talk about restoring torque which is represented by tau, क्योंकि यहाँ पे जो object है that is basically doing some type of rotational motion. So the analogous term for force in rotational terms will be torque, right? So यहाँ पे जो string में produce हो रहा है उसको हम लोग restoring torque बोलेंगे. And now we can definitely say that this restoring torque will be directly proportional to minus of theta, right? जितना ज़्यादा angular displacement आप दोगे उतना ज़्यादा restoring torque produce होगा, right? So they are directly proportional. And minus sign show करता है कि these two are in opposite directions. मतलब थीटा हम लोग ने ये डायरेक्शन में दिया है तो टॉर्क अपने को opposite डायरेक्शन में मिल रहा है, right? So if we remove this proportionality sign and if we insert equality, so definitely there will be a constant and यहाँ पे we will represent the constant by small letter c, right? So what is this c? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं c will be equal to minus of tau divided by theta. तो यहाँ से हम लोग c को नेम कर सकते हैं. c का नाम ऐसा है, c is the restoring torque. This is the restoring torque per unit angular displacement, right? क्योंकि c का फॉर्मूला देखो क्या है, it is tau upon theta. तो हम लोग c को बोलेंगे it is restoring torque per unit angular displacement. And कभी कभी इस c को हम लोग torsional constant भी बोलते हैं. So this is called as torsional constant. Now let us try to find the differential equation of angular SHM. तो हम लोग कहाँ से start कर सकते हैं? So we'll start the derivation by using this equation. So we have tau is equal to minus of c into theta, right? अब मैंने आपको बताया है कि differential equation क्या होता है, उसमें differential terms होने चाहिए. So what we can do is we can use the formula for torque. We all know torque is I into alpha, right? We can write tau
as I into alpha, where I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration. So we can write I alpha is equal to minus c into theta. अब यहाँ पे अल्फा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर से. मैं क्विकली बता देता हूँ. एक्सीलरेशन क्या होता है? इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर ये एंगुलर एक्सीलरेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा. एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग अल्फा के बदले क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? वी कैन राइट इट इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. मतलब थीटा को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा. राइट. सो अल्फा के बदले हम लोग ने लिख दिया डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी इंटू थीटा. तो ये जो इक्वेशन अपने को मिला है, दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम. जैसे वहां पे अपने को क्या आया था? वहां पे आई के बदले वी हैड द टर्म एम. राइट. वहां पर मास का टर्म प्रेजेंट है. डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर के बदले वहां पे था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. वहां पे मतलब लीनियर एसएचएम में. सी के बदले वी हैड के एंड थीटा के बदले वी हैड लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स. राइट. सो दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम. सो एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन ऐसा है, इट इज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द रीस्टोरिंग टॉर्क is directly proportional to the angular displacement and its direction is opposite to that of the angular displacement. Now let us try to derive कि इन oscillations का time period क्या होगा. तो हम लोग ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट डिराइव किया. I d square theta by dt square is equal to minus of c theta. अब हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करने को ट्राई करते हैं. Alright, so we all know टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला. टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा. अब ये जो ओमेगा है उसको हम लोग एक अलग वे में लिखने को ट्राई करते हैं. देखो, हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स. राइट. लीनियर एसएचएम में हम लोग ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था. हाँ, आई नो देयर इज अ माइनस साइन, बट फिलहाल के लिए वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड. सो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो यहाँ से वी कैन राइट ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स. ये एक्स इधर आके डिवाइड होगा एंड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ऐसा दिखेगा. तो यहाँ से वी कैन एक्चुअली डिफाइन ओमेगा एज रूट ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट. बट ये लीनियर एसएचएम के लिए हुआ. अभी अगर हम लोग को एंगुलर एसएचएम के लिए चाहिए, सो वी कैन राइट ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा. क्योंकि जहां पर लीनियर एक्सेलरेशन था वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रख दिया. जिधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स था उसके बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रख दिया. सो वी कैन राइट ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा. अब ये अल्फा बाय थीटा का वैल्यू कहां से मिलेगा आपने? तो लेट अस रेफर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां से वी कैन राइट आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा. राइट. ये डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सीलरेशन. तो यहाँ से इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, अल्फा बाई थीटा क्या मिलेगा अपने को? वी कैन राइट अल्फा बाई थीटा इज सी बाई आई. राइट. सो वी कैन राइट अल्फा बाई थीटा के बदले सी बाई आई. नाउ लेट अस ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड. सो वी नो टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा. बट ओमेगा क्या है? अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा. सो वी कैन राइट दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा एंड वी जस्ट सॉ अल्फा बाय थीटा मीन्स सी बाय आई. सो वी कैन राइट दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ c divided by I. So this is the equation for time period of angular SHM.